हेलो बच्चों। आज हम गेट इकोनॉमिक्स 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको गेट 2025 इकोनॉमिक्स की कोचिंग ज्वाइन करनी है, जिसके अंदर हम लोग फुल सिलेबस कवरेज कर रहे हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर डिस्कशंस हो रही हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो रही है, then you can contact us on this number. Now let's start with the discussion. So बच्चे, आज हम बात करेंगे गेट PYQ 2023, राइट। ये क्वेश्चंस आपको पेपर 2023 में मिल जाएंगे। So question number 1 is, an individual is endowed with income of 142. So the income is equals to 142 and has the utility function which is equals to utility is equals to x2 x1 plus 1, which can be written as x1 x2 plus x2, right, where both x1 and x2 are positive. The unit price of x1 is 2, so the price of x1 is 2 and the unit price of x2 is 3, so the price of x2 is equals to 3. The utility maximizing bundle, तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 is you need to find the MRS. In this case, what is your MRS बच्चे? MRS is MUX1 by MUX2. Now, what is MUX1? That means we need to differentiate this function with respect to x1, right? We need to differentiate this function with respect to x1. तो जब आप करोगे, what you will get? You will get your answer as x2 divided by what is MUX2? You need to differentiate with respect to x2. You will get your answer as x1 plus 1, right? So now this is your MRS. In this situation, if your x is increasing, or rather x1 is increasing, what is happening to MRS? Your MRS is falling. Your MRS is decreasing. What do you mean by that? It means that my ICs are convex. And whenever your ICs are convex, we have a tangency condition. टेंजेंसी कंडीशन का मतलब यहाँ पे हम MRS को इक्वेट करेंगे प्राइस रेशियो के साथ, which is, just give me a second यार. सॉरी बच्चों. तो यहाँ पे MRS equals to Px1 by Px2. Now tell me, what is Px1 here? Px1 is equals to 2, Px2 is equals to 3. What is your MRS? MRS is equals to x2 by x1 plus 1. x2 x1 plus 1 is equals to 2 by 3. अब बच्चा आपको इसको सॉल्व करना है. जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट? x2 is equals to 2 by 3 x1 plus 1, राइट. तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ गई है. इस इक्वेशन को आपको बजट लाइन पे पुट करना है. सो व्हाट इज योर बजट लाइन? 2x1 plus 3x2 is equals to 142. 2x1 plus 3x2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 by 3 x1 plus 1. Write down 2 by 3 x1 plus 1, right, which is equals to 142.
we can cancel this and we will get 4x1 plus 2 is equals to 142. In this scenario, 4x1 is equals to 140 and x1 is equals to 140 by 4, and if you solve this, you will get your answer as 35. So we know that my x1 is equals to 35. What is x2? For x2, we have this equation. x2 is equals to 2 by 3, x1 plus 1. So x2 is equals to 2 by 3, x1, which is 35 plus 1. In this case, that is equals to 72 by 3. And if you cut this, you will get your answer as 24. So x1 is equals to 35 and x2 is equals to 24. Right? So which is the correct answer is x1 is equals to 35 and x2 is equals to 24. This is a correct answer. Okay. Now the next question is what is stag inflation? Stag inflation का मतलब क्या होता है कि देखो जी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और हमारा साथ के साथ जीडीपी कम हो रहा है या फिर यू कैन से आउटपुट कम हो रहा है. अब आउटपुट कम हो रहा है दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, पहले एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है. अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी इसका मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. सो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. राइट. तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप है. So in this case, in the case of stagflation, both unemployment and inflation are high, right? So this is the correct answer. So option number B is correct here. Then we have consider the Keynesian consumption function C is equals to alpha plus beta y, where C is the aggregate consumption, Y is aggregate income, alpha is a constant, and beta is the marginal propensity to consume. Then the average propensity to consume is कुछ भी नहीं करना, कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा वाई. अब अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय वाई which is equals to alpha plus beta y divided by y, and if I simplify this, what I'll get, alpha by y plus beta. In this case, option number B is correct. Yeah. Okay. Then we have an analyst regressed y on x1 and x2. See, later notice that x1 is equals to 5x2. What do you mean by that? इसका मतलब perfect linear relationship है independent variables में. There is a perfect linear relationship. और जो कि नहीं होना चाहिए. क्यों? Multicularity की प्रॉब्लम आ जाएगी. Right? Then which of the following assumptions of the classical linear regression model was violated? Obviously मैंने आपको बता दिया multicularity की प्रॉब्लम इसमें आएगी. So इसमें जो हमारी assumption थी, there should be no perfect multicularity, ये assumption violate हो जाएगी. क्यों? क्योंकि we can see that now there is a perfect multicularity. Right? Option number B is correct here. Next question is which of the following an example of direct tax? Direct tax का मतलब क्या होता है, जिसका burden हम लोग ही bear करेंगे, जिसके ऊपर tax है. Indirect tax का burden क्या होता है, burden can be transferred to someone else. So in this case sales tax का burden हम transfer कर सकते हैं, transferable. जो transferable नहीं वो क्या है, individual income tax. जो मेरा income है उसके ऊपर मैं ही tax pay कर सकता हूँ, मेरी income पे आप tax pay नहीं करोगे. Right? I can't transfer my income tax burden to your shoulders. Therefore, option C is correct. Okay. In the context of endogenous growth theory, the Nobel literature Paul Romer emphasized that ideas are non-rival. So, this is a factual question. Paul Romer ने क्या बोला था कि ideas जो होते हैं वो non-rival nature के होते हैं. Right?
Ideas are non-rival. Okay. In the Human Development Index (HDI), the longevity is measured by. In this case, the correct answer is the longevity is measured by life expectancy by at birth. Sorry, life expectancy at बट अगेन दी फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपको या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा इसको आप सॉल्व एग्जाम में नहीं मतलब एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते राइट ओके which of the following is or are used for testing the assumption of normality अच्छा देखो नॉर्मैलिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं उसमें से जो फेमस टेस्ट है वो है जेबी टेस्ट एंड शिपारो विल्क टेस्ट so these two tests are there for normality in the case of gate do remember that ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो तो मिनिमम एक मैक्सिमम 3 ऑप्शन तक ये लोग करेक्ट दे देते हैं राइट तो आपको बहुत ध्यान से देखना है ऐसा मत करना कि अगर आपको जल्दीबाजी में अगर आपको जेबी टेस्ट के बारे में पता है तो बाकी सारे ऑप्शन छोड़ दो आपको सारे ऑप्शंस को एक बार ढंग से एनालाइज करना है एंड देन यू नीड टू गिव द आंसर या ओके suppose Amar borrows 1000 from Ujala. After 1 year, Ujala wants 1100 back from Amar. The yield to maturity. Basically, आपको ये बताना है कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला इन दिस केस ऑन बोरोइंग इज व्हाट सो एक बात बताओ स्टार्ट किया था हमने 1000 से अब जो लेंडर है वो कह रहा है कि मुझे 1100 रुपये चाहिए नेक्स्ट ईयर तो yield to maturity क्या हो गया इन दिस केस yield to maturity इज नथिंग बट 10% right in this case yield to maturity is nothing but 10%. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो तो मतलब कितना ग्रोथ आया ये भी देख सकते हो आप ग्रोथ कैसे देखेंगे न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100 which is equals to 100 by 1000 into 100 which is equals to 10% right so the yield to maturity in percent is 10% yeah okay a 250 ml bottle of mango juice cost USD 4 in United States. So 250 ml bottle, the cost of that is $4. If the exchange rate is 0.02 USD per rupee, 0.02 dollar per rupee, which means that 0.02 dollar is equals to 1 rupee. Then the cost of same bottle of mango juice in rupees would be so हमें $4 चाहिए तो एक काम करो $1 को पहले लिखो $1 is equals to 1 by 0.02 rupee and hence $4 is equals to 4 0.02 rupee and if I convert this I'll get my answer as 200 so the answer is 200 बच्चे या तो अगर आप $4 खर्च करते हो यूएसए में for the same product if exchange rate is 0.02 then for $4 you need to spend 200 rupees to buy the same bottle yeah okay the firm in the market with perfect combination has the following cost function PC is equals to A plus BQ where Q is the quantity produced by the firm A is the fixed cost and BQ is the variable cost what will happen if the fixed cost increases what will happen if the fixed cost increases so in this case अब ध्यान से देखो A की जगह आप इसको 2A कर दो PC is equals to 2A plus BQ आपने फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दिया बाकी सारी चीजें सेम है इन दिस केस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड किस पे करेगी BQ पे इस पे कोई भी चेंज नहीं आया मैं भी रेड वाला नहीं पढ़ रहा सारे ब्लैक वाले ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट्स इसके अंदर फर्म विल नॉट अर्न हायर प्रॉफिट्स क्योंकि अब आपका कॉस्ट बढ़ गया है फर्म विल अर्न लेसर प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन द फर्म्स MC कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड MCU डिपेंड किस में करता है वेरिएबल कॉस्ट में तो ऑब्वियसली दीज ऑप्शन आर इनकरेक्ट अब एक बार ऑप्शन बी को पढ़ते हैं
In the short run, firm's average total cost is a mixture of what? Average fixed cost, जो कि इस पर डिपेंड करेगी, and average variable cost, जो कि इस पर डिपेंड करेगी, will shift up, and that is correct. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपकी क्योंकि फिक्स कॉस्ट बढ़ गई थी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, एंड हेंस एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, एंड द रिजल्ट विल शिफ्ट अपवर्ड्स. So in this case, option B is correct. Yeah. Okay. The emission of greenhouse gases is an example of bad starter. अब देखो, ग्रीन हाउस गैसेस का emission हो रहा है, किसको इम्पैक्ट करेगा? सबको इम्पैक्ट करेगा. अमीर गरीब कुछ नहीं देखेगा, वो सबको इम्पैक्ट करेगा वो. So therefore, it is a public good, and public good की properties क्या है? Non-rival and non-excludable. So therefore, option D is correct. Okay. Consider a closed economy ISLM model. The IS and LM equations are y is equals to cy plus iz plus g, m by p, which is your real money supply, which is ky minus li. हम लोगों ने hi किया हुआ है, राइट? तो उसने यहाँ पे li दे दिया. यहाँ पे एक और चीज इन लोगों ने करी है, z दिया है, और z को डिफाइन कैसे कर रहे हैं लोग? I माइनस पाई नॉट, राइट? और ये ना पाई ई लिखो, ज्यादा बेटर ये है, राइट? ये भी पाई ई लिखो, पाई नॉट से बेटर है. Where y is your output, C is your consumption, and if you differentiate C with respect to y, that is more than zero. Investment जो है, that is the inverse, right? इन्वेस्ट आई डैश, मतलब उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा, जो कि नॉर्मल केस है. हमने पढ़ा हुआ है आई इज इक्वल्स टू आई पर माइनस बी आई. तो अगर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आई करते हो तो यू विल गेट दी नेगेटिव, और डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आएगा. जेड को यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है, और रियल इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन क्या होती है? रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे आर वर्ड को ना यूज करके दे हैव यूज जेड, I minus pi e, right? So Z is I minus pi e, where I is the nominal interest rate, pi is the expected inflation, G is government purchase, M by P is fixed real money balance, and K and L are positive constant. Suppose everyone in this economy suddenly expects the inflation to rise in the future, assuming that LM curve remains unchanged. What will happen to short run? What will happen in short run? अब देखो ध्यान से. Let me use ये मैंने IS बनाया, ये मैंने LM बनाया, राइट? ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट देख रहा हूँ. ये मेरा इक्विलिब्रियम Y है, यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम इनकम देख रहा हूँ. So this is interest rate, this is income, right? Okay. Now in this situation, अगर मेरा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ये वाली इक्वेशन आपको क्या बोलती है? आपका z की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? सो वैल्यू z विल फॉल. व्हाट इज वैल्यू z? रियल इंटरेस्ट रेट. रियल इंटरेस्ट रेट कहाँ पे काम आ रहा है? इन्वेस्टमेंट में. अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है और ये रिलेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? कि आपका इन्वेस्टमेंट विल राइज and your AD will rise, and this will impact your shift in IS curve. IS curve will shift towards in this direction. Let me draw it. IS curve shift towards right, right? उससे हुआ क्या? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो गया. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अब हमारा इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, राइट? So the correct answer is equilibrium by increases. Equilibrium by increases. अब देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट कुछ भी इसके अंदर करना नहीं था. ओके. An income tax system is considered as progressive if. अच्छा, ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. ये क्वेश्चन इजी लग रहा है बट है थोड़ा सा चैलेंजिंग. या an income tax system is considered as progressive if the average tax rate rises with income. वो प्रोग्रेसिव कब है? जब एवरेज, अच्छा यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान से देखना, एवरेज टैक्स रेट राइजेस विद इनकम. कंसिडर एन इनकम टैक्स शेड्यूल.
T is equals to rho plus Ty, where capital T denotes the tax liability, rho is your constant, small t is your constant marginal tax rate, and y is your income. For this tax schedule to be progressive, the value of rho will be progressive की definition क्या बताइए? If average tax rate rises with income, पहले average tax rate निकालो. So T by Y is your average tax rate, which is equals to rho by Y और P by Y plus T. अब ये कब होगा? प्रोग्रेसिव कब होगा? व्हेन ये जो टैक्स रेट है इट विल राइज विद इनकम. तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू इनकम. व्हाट यू विल गेट? माइनस पी वाई स्क्वायर. राइट. अब अगर मेरा रो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो विद द पहली बात तो ये देखो, विद द अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव है, रो पॉजिटिव है, तो ये क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या? विद द इंक्रीज इन इनकम मेरा एवरेज टैक्स रेट कम हो रहा है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है. तो हमें रिलेशनशिप को पॉजिटिव लेके आना है. पॉजिटिव कब लेके आओगे? जब ये आप माइनस साइन को चेंज नहीं कर सकते, तो जब ये रो की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. तो द आंसर इज बी, रो मस्ट बी नेगेटिव in order to have this schedule progressive. Progressive का मतलब क्या? Average tax rate rises with income. तो इन दिस क्वेश्चन हमने क्या किया? पहले एवरेज टैक्स रेट निकाला और उसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू इनकम, क्योंकि हमें देखना था अगर इनकम बढ़ेगी तो एवरेज टैक्स रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो ये आंसर आया था. अब डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रो पे कि नेगेटिव हो गया पॉजिटिव. अगर मैं रो की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, ये रिलेशन नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब क्या? अगर वाई बढ़ेगा तो एवरेज टैक्स रेट कम होगा, बट हमें वो नहीं चाहिए था, हमें उसको उल्टा चाहिए था. हमें चाहिए था अगर वाई बढ़ेगा तो एवरेज टैक्स रेट बढ़ना चाहिए, विच मीन्स दैट कि ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है पॉजिटिव आना चाहिए. वो कब आएगा? जो वैल्यू ऑफ रो इज नेगेटिव. राइट. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके. This question involves comparing the production efficiency of two countries, India and Bangladesh, in producing two goods, glass bottles and ceramic plate. Based upon the labor hour required per unit of production, the data is as follows. India का डेटा है 2 hours उसको लग रहा है 1 ग्लास बॉटल बनाने में एंड 3 hours लग रहा है कैरेमिक प्लेट बनाने में. Whereas in the case of बांग्लादेश उसको 3 hours लग रहा है ग्लास ऑफ 1 ग्लास ऑफ बॉटल बनाने में एंड 9 hours लग रहे हैं कैरेमिक प्लेट बनाने में. सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना है. पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करते हैं. एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये होता है कि जहां पे भी सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, फॉर एग्जांपल 1 ग्लास ऑफ बॉटल को प्रोड्यूस करने का मेरी लेसर लेबर लग रही है, लेसर रिसोर्सेज लग रही है. तो इंडिया और बांग्लादेश को देखो, हमारा इंडिया में लेसर रिसोर्सेज लग रहे हैं. सो इंडिया हैज द कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मेकिंग द ग्लास ऑफ बॉटल. अगर मैं कैरेमिक प्लेट को देखूं तो 3 and 9, तो इंडिया में भी अभी कैरेमिक प्लेट के लिए भी कम आवर्स लग रहे हैं. सो इंडिया के पास दोनों जगह में एब्सोल्यूट एडवांटेज है. कहां का? ग्लास बॉटल एंड कैरेमिक प्लेट. तो इंडिया हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ गुड्स, विच इज ग्लास बॉटल एंड कैरेमिक प्लेट. याद रखना इन द केस ऑफ कंपैरेटिव आपका दोनों गुड्स में नहीं आ सकता, कंपैरेटिव अलग अलग ही आएगा. एब्सोल्यूट दो गुड्स में एक कंट्री के लिए एक साथ आ सकता है. अब बात करते हैं कंपैरेटिव की. कंपैरेटिव के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है वहां पे वी विल प्रोड्यूस. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे यहाँ पे 2 hours है, यहाँ पे 3 hours है, आप यहाँ पे करोगे जो यहाँ पे गिवन है. अगर लेबर गिवन है, ये प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बोल रहा, कई बार ना आपको प्रोडक्ट्स दे दिए जाते हैं, वन यूनिट ऑफ लेबर इज प्रोड्यूसिंग दैट, वो नहीं कह रहा. अभी यहाँ पे क्या गिवन है? 2 hours ऑफ लेबर इज प्रोड्यूसिंग 1 unit ऑफ गुड. उस केस में बता रहा हूँ. तो जो लेबर यहाँ पे है डिवाइडेड बाय जो लेबर यहाँ पे है. सिमिलरली जो लेबर यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो लेबर यहाँ पे. इंडिया के लिए ऐसे हुआ, ऐसे ही बांग्लादेश के लिए जो लेबर यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो लेबर यहाँ पे है एंड जो लेबर यहाँ पे है डिवाइडेड बाय जो लेबर यहाँ पे है. अब आपने निकाल लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करो. 2/3 बड़ा या 1/3 बड़ा?
सर ऑब्वियसली 1/3, सॉरी बड़ा इज 2/3, बट हमें छोटी वैल्यू निकालनी है. वी नीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटी वेयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लेसर. सो इन दिस केस सर 3/9 इज लेसर एज कम्पेयर टू 2/3. 3/9 को अगर सॉल्व करोगे तो 1/3 आता है, तो लेसर है. एंड यहाँ पे 3/2 बड़ा या 3 बड़ा, क्योंकि 9/3 को सॉल्व करोगे 3 और 3/2 को सॉल्व करोगे 1.5. 1.5 बड़ा या 3 बड़ा? सर 1.5 छोटा, 3 बड़ा, बट हमें छोटे को फिगर आउट करना है, तो दिस इज द केस. In this scenario, we can say that India has comparative advantage in producing ceramic plate and Bangladesh has comparative advantage in producing glass bottle. Right? अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ग्लास बॉटल. यस, दैट इज ट्रू. इंडिया के पास दोनों एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों प्रोडक्ट्स में. एंड कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, यहाँ पे देखो उन लोगों ने डिसएडवांटेज लिख दिया इन ग्लास बॉटल. डिसएडवांटेज का मतलब जहाँ पे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, तो ग्लास बॉटल में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने तो अपनी तरफ से सही आंसर सिलेक्ट किया था, क्योंकि वो डिसएडवांटेज को एडवांटेज पढ़ेंगे यहाँ पे और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे. तो बच्चे आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन से वर्ड्स कहाँ पे इन लोगों ने लिखे हैं. गेट के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. गेट में वो वर्ड ऐसे पुट करते हैं कि हमें लगता है कि हमने तो सही किया था, बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. राइट? ओके. सिमिलरली ऑप्शन सी के अंदर इंडिया हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ceramic प्लेट. दैट इज ट्रू. पहले उसने यहाँ पे बोला था ग्लास बॉटल, विच इज ऑल्सो ट्रू. ceramic प्लेट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इंडिया के पास दोनों एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों प्रोडक्ट्स में. एंड कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, यहाँ पे भी वर्ड का यूज कर रहे हैं वो, डिसएडवांटेज इसकी इंडिया की इन ग्लास बॉटल प्रोडक्शन. दैट इज ट्रू. Therefore, option A and C are correct. Yeah. Okay. Suppose the own price elasticity of demand and income elasticity of demand are given by EP and EI respectively. The substitute P, ये वाला EP का P, represent own price of goods and the substitute I, EI की बात कर रहे हैं, represent income of the consumer. Identify the correct statement from the following. In this case, for price elasticity, it is lying between 1 and infinity. The answer is no. It is lying between 0 till infinity. Rather, क्योंकि यहाँ पे absolute terms इन्होंने नहीं यूज करा है, तो it can lie between minus infinity to 0 because of law of demand. और अगर मैं सब कुछ ले लूँ, गिवन गुड सब कुछ उसके अंदर कंसिडर कर लूँ, तो इट कैन लाई बिटवीन एनीथिंग. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. राइट? बट जनरली हम लोग एक ही लेते हैं. अगर ये एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन होता तो ये तब भी ट्रू नहीं होता, क्योंकि ये एटलीस्ट हमें 0 से स्टार्ट करना होता है. दिस इज फॉल्स. लग्जरी गुड्स आर मोर प्राइस इन इलास्टिक. अब देखो यहाँ पे क्या है, मोर उन्होंने लिख दिया. मैंने आपको बोला ना वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं. इन्होंने मोर तो लिख दिया, बट प्राइस इन इलास्टिक लिख दिया. हमें पता है लग्जरी गुड्स के लिए मोर प्राइस, लग्जरी गुड्स आर मोर प्राइस इलास्टिक, नॉट मोर प्राइस इन इलास्टिक. राइट? नॉट. यहाँ पे क्या लिखा है? मोर प्राइस इन इलास्टिक. कई बच्चे इसको टिक करके आएंगे, ये गलत है. एंड नेसेसिटीज आर प्राइस इलास्टिक. नहीं भाई, नेसेसिटीज आर प्राइस इन इलास्टिक. Therefore, this option is wrong. Luxury goods have income lasting more than one. That is true. वो इलास्टिक होता है इनकम के सेंस में. B, प्राइस इलास्टिसिटी शुड लाई बिटवीन 0 till 1. अगर ऐसा कुछ है तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिक. द आंसर इज नो. प्राइस इलास्टिक में तभी बोलूंगा जब इलास्टिसिटी की वैल्यू मोर देन 1 होगी इन एब्सोल्यूट टर्म्स. So this is also false. So the only correct option is option C. Yeah. Okay. देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है. 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में. इसलिए गेट के क्वेश्चंस हैं इजी. देखो जब मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ दे आर वेरी सिंपल, बट जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे कोई और ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है जो मुझे नहीं पता. तो ऐसी भी फीलिंग आ सकती है. उसके लिए बेटर क्या चीज है, प्लीज जब भी आप कोई भी चीज पढ़ोगे ध्यान से पढ़ लेना उसको, क्योंकि कोई भी चीज कहीं पे भी आ सकती है. राइट? ओके. लेट पाई, इसको पाई ई बोल दो.
let pi e be the expected inflation, I be the nominal interest rate, and r be the real interest rate. Which of the following statement is or are correct? So for small values r and pi e, ये रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था, राइट? सो दिस इज ट्रू, r इज इक्वल्स टू i माइनस पाई e. तो अगर r और पाई की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी तो ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस. और वैसे भी ना हम ये साइन यूज करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, वो लगभग इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट होता है. व्हेन रियल इंटरेस्ट रेट इज लो, अब बताओ, पीपल विल बोरो मोर फ्रॉम द बैंक क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. रियल इंटरेस्ट रेट किसका फंक्शन था? इन्वेस्टमेंट का, राइट? मैंने अभी आपको बताया था ना, investment is a function of z and z is nothing but your real interest rate, right? So if real interest rate is greater, the incentive to borrow and fewer the incentive to lend. Yeah, that is also true. Real interest rate reflects the real cost of borrowing. That is also true. And therefore businessmen will take real interest rate क्योंकि उनको real cost of borrowing पता होनी चाहिए, इसलिए हम investment में real interest rate का यूज करते हैं. If I is 8%, pi E is 10%, then R is approximately plus 2%. ध्यान से देखना है तो R I कितना है? 8 माइनस 10 कितना आया? -2. अब देखो, कई बच्चे इस आंसर को सही कराएंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने सॉल्व किया नहीं होगा, बट माइंड उन्होंने मतलब लिख के सॉल्व नहीं किया होगा, माइंड में क्या आएगा, हाँ इसका डिफरेंस 2 ही तो होता है, +2 को ठीक कराएंगे. बट द आंसर इज -2%, राइट? देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. ओके. Which of the following which of the following models explains the upward sloping aggregate supply curve in short run? देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ. अगर प्योर केन्जियन वाला सिस्टम है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होता है. फिर अगर बीच की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई का कुछ अपवर्ड स्लोपिंग होता है. और प्योर क्लासिकल की बात करते हैं तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है, राइट? इन दिस केस, इन द केस ऑफ केन्स, आपका प्राइस एंड वेजेस दोनों फिक्स्ड रहता है. अपवर्ड स्लोप पहले इसकी बात करते हैं. क्लासिकल में आपका प्राइस एंड वेजेस दोनों फुली फ्लेक्सिबल रहता है. इन द केस ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग आपका वेजेस फिर भी फ्लेक्सिबल रह सकता है, सॉरी, वेजेस फिक्स्ड रह सकता है, बट प्राइस इज फ्लेक्सिबल नाउ, राइट? So sticky wage model, yep, wages can be fixed, but prices should be flexible. Worker misperception model, इसका मतलब क्या है कि जब भी वर्कर्स को ऐसा लगेगा इकोनॉमी में फ्यूचर में ये प्राइस होने वाला है, तो वर्कर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने की कोशिश करेंगे. बट क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी नहीं, तो हमेशा उनकी वेजेस जो है वो कम ही रहेंगी एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन प्राइस, राइट? तो इन दैट सेंस हमारा जब भी ये होगा वर्कर मिस रिसेप्शन मॉडल, because there is no perfect information, your AS is upward sloping. Whenever there is perfect information, your AS is vertical. Whenever there is not perfect information, your AS is upward sloping. Imperfect information, upward sloping. Perfect होती तो vertical होता. सोलो मॉडल क्लासिकल का केस है, AS is vertical, right? So in these cases, these options are correct. क्योंकि सोलो मॉडल में क्या है, स्टडी स्टेट की बात हो रही है ना. स्टडी स्टेट का मतलब लॉन्ग रन में क्या होता है, इसको वर्टिकल होता है, right? Okay. Then we have, in the context of balance of payment accounting, which of the following transactions are not recorded under current account? Merchandise trade, unilateral trade payments, purchase of international financial assets, purchase of foreign currency by the central bank. याद रखेंगे, not recorded in current account, purchase of international financial assets ये capital account का part है. परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक ये बोरोइंग्स का पार्ट आएगा, अगेन कैपिटल अकाउंट. तो ये दोनों करंट अकाउंट के पार्ट नहीं है, या ओके. द डिमांड and the supply functions for a commodity is given by dp is equals to 10 minus 2p
and SP is equals to minus 2 plus P, where DP and SP are quantity demanded and supplied respectively, and price in USD is the unit price of the good. If the government sets the price ceiling of USD 3 per unit, then the increase in consumer surplus, याद रखना क्या निकालना है हमें यहाँ पे, increase in consumer surplus is what? सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप डिमांड टू सप्लाई को सॉल्व करो. डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इज 10 minus 2p is equals to minus 2 plus p. If we solve this, we will get 8 is equals to, sorry, 12 is equals to 3p and p is equals to 4. ये आपका इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है. फटाफट से यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं. ये मैंने डिमांड बनाया, राइट, एंड जब डिमांड बना रहा हूँ, व्हेन प्राइस इक्वल्स टू 0, डिमांड इज 10, and when q equals to 0, price is 5. Supply के लिए when s is equals to 0, p is 2, when quantity supply is equals to 0, p is 2, and then we have a positive risk curve here, right. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपके लिए ये आ जाएगा, which is nothing but equals to 4. ये आप सॉल्व कर चुके, राइट. तो दिस इज 4. एट दिस 4, व्हाट इज, यहाँ पे 4 की वैल्यू डाल दो, 10 minus 8 which is equals to 2. योर क्वांटिटी इज 2. अभी के लिए जो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस है वो एरिया ए है, और जो बी है वो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है. बट अगर गवर्नमेंट कहती है, देखो जी मैंने तो यहाँ पे प्राइस सीलिंग लगा दी है, थोड़ा सा उसको और नीचे करो सो दैट वो आपको ढंग से दिखे. मैंने यहाँ पे प्राइस सीलिंग लगा दी है. अब आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या होगा, ध्यान से देखना कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा. ये 3 है, दिस इज 3, राइट. कंज्यूमर सरप्लस आपका ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस होगा. अब वो कह रहा है कि इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ. तो पहले बताओ ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस क्या था. तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करेंगे. नहीं तो वैसे आपको दिख ही रहा है ना, जब प्राइस मेरा 3 है, व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड. अच्छा, प्राइस सीलिंग में आप क्वांटिटी सप्लाइड निकाल लोगे. व्हेन प्राइस इज 3, ये क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है. योर क्यू इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 आया. ध्यान से देखना, ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस. कितना बेस है, 2 तक, इनटू हाइट. हाइट कितनी है, 4 to 5, 1. एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे सॉल्व करते हुए. या okay, so here this is 4, this is 5, this is 2. your consumer surplus is half into base. अच्छा, यहाँ पे मैं ए निकालना चाहता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाहता हूँ, राइट, ट्रायंगल, सॉरी. सो क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस है सारी, तो हाफ इनटू बेस. बेस कितना है, योर क्वांटिटी विच इज 2. हाइट कितना है, 5 minus 4 which is 1. so the answer is 1. पहले वाला कंज्यूमर सरप्लस कितना है मेरा, 1. नया वाला कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हमें प्राइस सीलिंग गिवन है, ठीक है, एंड ये है 3. ये प्रॉपर्ली स्केल्ड नहीं है, ये आपको भी दिख रहा है, बट अभी के लिए रिज्यूम करो ये प्रॉपर्ली स्केल्ड है. अब यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है
वो एरिया ए, नॉट एरिया है कम्प्लीटली, बट ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है। चलो मैं आपके लिए शेड कर देता हूँ, राइट। ये वाला पार्ट आपका कंज्यूमर सरप्लस है। अब ये निकालोगे कैसे? जब भी आपको ये समझ ना आए कि ये फिगर है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब अगर आप इंटीग्रेशन यूज करते हो फॉर डिमांड, आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्वांटिटी को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया पूरा आ जाएगा, बट हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक बार क्वांटिटी बता देता हूँ। जब आप 3 पुट करोगे, याद रखना ये 3 जो है फर्स्ट इंटरसेक्शन कहाँ पे है? सप्लाई में है। तो अगर सप्लाई मेरी 3, अगर सप्लाई मेरी कम है तो मैं उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे फर्स्ट इंटरसेक्शन देखना है विच इज़ ऑन सप्लाई। मैं सप्लाई से ज़्यादा नहीं बेच सकता हूँ अपना। तो इसलिए आप 3 को यहाँ पुट करोगे सप्लाई की इक्वेशन में। -2 + 3 = 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो जब आपने इंटीग्रेट करा जीरो जीरो से लेकर 1 तक पूरे डिमांड कर्व को, आपको ये येलो वाला एरिया मिला। बट उसमें से हमें माइनस कौन सा एरिया करना है? उसमें से हमें माइनस ये रेड एरिया करना है। ये तो हमारा पार्ट ही नहीं थे ना, नीचे वाला। और ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज this into this length in the bracket, 3 into 1 which is 3। ध्यान से देखेंगे, आई एम डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड, बट यहाँ पे डिमांड का आप इनवर्स डिमांड लोगे क्योंकि आप क्वांटिटीज को पुट कर रहे हो। मैं 0 till 1 पुट करूंगा। जब आप इनवर्स करोगे तो इसका क्या आएगा? सिंस q is equals to 10 minus 2p, therefore p is equals to 5 minus q by 2। यहाँ पे लिखो 5 minus q by 2 dq 0 till 1। ठीक है, ऊपर 1 लिखना बच्चे आप। उसके बाद व्हेन यू इंटीग्रेट यू विल गेट 5 क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 0 till 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 minus 1 by 4 विच इज इक्वल्स टू 4.75। 4.75 किसका आंसर आया? पूरा येलो का, नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक। बट हमें उसमें से सबट्रैक्ट क्या करना है? फॉर न्यू कंज्यूमर सरप्लस, फॉर न्यू कंज्यूमर सरप्लस हमें उसमें से सबट्रैक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है विच इज 3 into 1 विच इज 3। सो द आंसर इज 1.75। तो जो नया वाला कंज्यूमर सरप्लस है वो 1.75 है, जो ओल्ड था वो कितना था? 1 था। तो इंक्रीज कितना हुआ? 1.75 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0.75 इज योर करेक्ट आंसर। 0.75 इज योर करेक्ट आंसर। या ओके। A duopoly faces the inverse market demand function P is equals to 120 minus Q, where P is the unit price in rupees of goods being sold by firm A and B, and Q is the total output. Firm A has a constant marginal cost of 20, which is exactly half of firm B marginal cost. There is no fixed cost for both the firms if there exists a corner Nash equilibrium or not Nash equilibrium, then Q is what? बहुत सिंपल है। P is equals to 120 माइनस इसको Q1 माइनस Q2 लिख रहे हैं। आपको MC ऑफ A गिवन है विच इज 20 एंड दिस इज हाफ ऑफ MC ऑफ B। सो MC ऑफ B कितना हो गया? 40। प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 निकाल लो, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन के लिए ये आएगा 120 Q1 माइनस Q1 Q2 सॉरी Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 minus MC into Q1 which is 20 Q1। Now differentiate this with respect to Q1, you will get 120 minus 2Q1 minus Q2 minus 20 is equals to 0। You will get 100 minus Q2 by 2 which is equals to Q1। This is your best response curve of firm 1। Similarly, आप pi 2 निकालोगे और best response curve from 2 which is 120 Q2 minus Q1 Q2 minus Q2 square minus 40 Q2
कई बच्चे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, कई बच्चे ना ये वाली चीज भूल जाएंगे, और मोस्टली क्वेश्चन में ना आपका बेस्ट रिस्पॉन्स का सेम आता है। ऐसा मत करना, आप इसको प्रॉपर सॉल्व करना। डेल पाई टू डेल क्यू टू विच इज इक्वल्स टू 120 माइनस Q1, just give me a second, minus Q1 minus 2Q2 minus 40 is equals to 0. Right? Here we can write this as 80 minus Q1 by 2 is equals to Q2. तो यार बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व ऑफ फॉर्म 2, राइट? आपके पास ये आ गया है, आपके पास ये आ गया है। मैं Q2 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, तो व्हाट आई गेट 100 माइनस Q2 की वैल्यू क्या है बच्चे, 80 माइनस Q1 by 2 whole divided by 2 is equals to Q1. Now this is 200 minus 80 plus Q1 by 4 is equals to Q1. This is 120 is equals to 3Q1. Therefore Q1 is equals to 40. आपके पास Q1 की वैल्यू क्या आई बच्चे, 40 आ चुकी है। Just give me a second. So sorry. Yeah, आपके पास Q1 की वैल्यू 40 आ चुकी है। Now if you put the value of Q1 here, what you will get, 80 minus 40 divided by 2, which is equals to Q2, and hence your Q2 is equals to 20. So 40 plus 20 is what, 60. So total Q is equals to 60, and this is your answer, 60. Yep. Okay. Now consider the following short run cost function. At the minimum average variable cost, the value of marginal cost. हमें पता है कि अगर, अच्छा अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार ये बता भी देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं बोलता हूँ हमें पता है, बट वो बच्चों को शायद ना पता हो। तो अगर मैं यहाँ पे AC और MC का रिलेशन बनाता हूँ तो देखो रिलेशनशिप क्या होगा। सो ये MC, ये AVC, MC हमेशा AVC के मिनिमम पे कट करेगा, राइट? तो वो क्या पूछ रहा है, एट द मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा MC वहाँ पे एवरेज मिनिमम होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, द वैल्यू ऑफ MC इज 1। तो ऐसे क्वेश्चंस पे, अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, आपको पहले एबीसी निकालना है, एमसी निकालना है, दोनों को इक्वेट कर दोगे, क्योंकि देख रहा था आप देख रहे थे इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ पे, राइट? इक्वेट कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, एंड देन वी कैन फाइंड द एमसी वेरी इजीली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एबीसी व्हिच इज इक्वल्स टू सी बाय क्यू व्हिच इज इक्वल्स टू, अच्छा इसके अंदर हम नॉट एंटायर सी बाय क्यू बट रादर टी वी सी बाय क्यू। सो यहाँ पे टी एफ सी भी गिवन है, टी वी सी बाय क्यू which is equals to 10 q square minus 80 q plus 300. Your MC is what बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू q, you will get 30 q square minus 160 q plus 300. Put equation 1 equals to equation 2, what you will get, 30 q square minus 160 q plus 300 is equals to 10 q square minus 80q plus 300. We can cancel this very easily, and then we have 20q square minus
80 cube is equals to 0. Taking q common, we will have 20 cube minus 80 is equals to 0, and hence either q is equals to 0, which is not the case, or q is equals to 4. Now, since you get q is equals to 4 in this situation, we need, or they need, the value of mc, right, at the minima when abc is minima. So हमारा पास mc आया था, यहाँ पे q की जगह क्या पुट करोगे, 4. So in this scenario you will get 30 into 4 का square is 16 minus 160 into q 4 plus 300. अच्छा, जो भी आपका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, नाउ यू कैन सॉल्व इट, राइट. अब तो सिर्फ प्लस माइनस करना है. जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट. ओके, then we have consider the Keynesian cross model with linear consumption function and a zero tax where the government purchase is 100 and the equilibrium income is 1300. If the government purchase is increased to 125, the equilibrium income increased to 1400. Using the given information, the margin from business to consume is what. अब देखो यहाँ पे ना हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, एलएम के बारे में कुछ भी गिवन नहीं. तो इन दिस केस हमें सिर्फ आईएस की इक्वेशन यूज करना है. तो यहाँ पे हमें पता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन जी क्या होगा, अल्फा जी विच इज 1/1 माइनस सी. चेंज इन वाई कितना है, 300 400, तो 100 हो गया चेंज इन वाई. न्यू माइनस ओल्ड, 400 1400 माइनस 1300 इज 100, एंड चेंज इन जी कितना है, 125 माइनस 100 इज 25, which is equals to alpha g, which is nothing but 1 minus c, 1/1 minus c. So this is equals to 4, and we have 4, और rather इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करें, 1 minus c is equals to 1 by 4. So c is equals to 1 minus 1 by 4, which is equals to 3 by 4, which is equals to 0.75. So this is your correct answer, which is 0.75 is the correct answer. Yeah. Okay. Now let the random variable let x be the random variable with the probability density function fx such that the equation is given to you. Then the variance of x, कुछ भी नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में. Variance of x equals to what? Expectation of x square minus expectation of x का whole square. What is expectation of x? Integrate x into fx dx from lower limit till upper limit, that is right. In this case मैं इसको ना नीचे लिखता हूँ so that we can use the space ढंग से. Okay. In this case we will have x into 2, थोड़ा सा स्क्वायर ले लेते हैं, this is equals to minus under root 3 x by 2 under root 3 dx, right. अब when we integrate this, what we will get, x square 4 under root 3 minus root 3. In this scenario, what you will have, upper limit minus lower limit, which is 3 by 4 root 3 minus no limit, क्योंकि ये स्क्वायर है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 4 रूट 3, तो ये आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स का आंसर 0 है. ऑब्वियसली एक्स होल स्क्वायर का भी आंसर क्या आएगा 0, तो वेरिएंस जो बचा वो सिर्फ बचा ई एक्स स्क्वायर के ऊपर. नाउ लेट्स सॉल्व फॉर ई एक्स स्क्वायर. ई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इनटू एफ एक्स dx, which is equals to integrate minus root 3
x square to under root 3 dx. In this scenario, you will have x cube by 6 under root 3 minus root 3 root 3, right? Now, in this case, if I solve this, I will have upper minus lower limit 3 under root 3 divided by 6 under root 3 माइनस, क्योंकि अब क्यूब है तो यहाँ पे माइनस के साथ 3 under root 3 6 under root 3, you can cancel this, under root 3 under root 3, this is half, minus minus plus half, which is equals to 1. So the variance of x is equals to 1. This is your answer. The variance of x is equals to 1. Yeah. Okay. Now, suppose from the estimation of linear regression model, y is equals to beta naught plus beta 1 xi plus ei, the residual sum of squares and the total sum of squares. अब देखो RSS कितना गिवन है 44, ESS कितना गिवन है 80, ESS बहुत आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ESS minus RSS is ESS, which is 36. The value of coefficient of determination, R square की वैल्यू पूछ रहे हैं, R square क्या होता है ESS by TSS, which is equals to what 36 by 80, and if you solve this you will get your answer as 0.45 or 45%, right? So this is your correct answer, which is 0.45. ठीक है? Okay. Next question is, a labor augmented production function is y is equals to k to the power 0.33 a. अच्छा इसको ना मैं ढंग से लिख लेता हूँ. This is k to the power 0.33 a l to the power 0.67, where y is output, k is capital, l is labor, a is technology. Assume that the growth rate of L is 1.2% per annum, growth rate of K is 3% per annum, and growth rate of A is 1.5% per annum. Using the growth accounting approach, the growth rate of Y is, अब देखो ध्यान से, ये हमने अभी प्रीवियस क्लास में करा सोलो मॉडल की क्लास में. In this case, your change in Y by Y is equals to what? अब ध्यान से देखेंगे, जब मैं यहाँ पे लॉग लगाऊंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा 0.33, मतलब लॉग लगाकर जब ग्रोथ निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा चेंज इन के बाई के प्लस 0.67 चेंज इन ए बाई ए प्लस 0.67 चेंज इन एल बाई एल. अब आपको क्या क्या गिवन है 0.33 चेंज इन के बाई के इंटू 100 की वैल्यू गिवन है विच इज 3, which is 3, right, plus 0.67 A की ग्रोथ गिवन है which is 1.5 plus 0.67 L की ग्रोथ गिवन है which is 1.2. कैलकुलेटर यूज करो, आई डोंट हैव कैलकुलेटर अभी, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ y, राइट. 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 2.8, राइट, बट मुझे अभी याद नहीं, मैंने एक बार सॉल्व किया था, बट 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. तो दैट इज 2 पॉइंट समथिंग is the growth rate of y. पूरा निकालना, राइट, 2 डेसिमल प्लेस तक. मेरे ख्याल से आंसर 2.8 तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है. क्या? Okay, last question. A monopolist is facing the demand function q is equals to 100 by p minus 1, where q is the quantity demanded, p is the price per unit of good, p is more than 1. The average variable cost for monopolist is 4 by under root q. So this is the average variable cost. And the fixed cost is 10. The profit maximizing price is what? So average variable cost
हमें गिवन है 4/√Q। अगर मुझे यहाँ से TVC निकालना है, व्हाट आई गेट, सो इनटू Q कर देंगे, तो दिस इज 4/√Q। मुझे TC निकालना है तो क्या होगा, 4/√Q प्लस 10, राइट, क्योंकि दैट इज माई फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे मुझे अगर TR निकालना है तो TR निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, P इंटू Q, राइट। बट क्योंकि Q कितना है, 100/P-1, तो P-1 is equals to 100/Q, and hence P is equals to 100/Q plus 1। सबसे पहले आप इनवर्स डिमांड फंक्शन निकालोगे, ये मैंने अभी आपको बताया था, राइट। इन दिस केस योर TR विल बी P which is equals to 100/Q plus 1 and Q into Q करोगे तो into Q which is equals to 100 plus Q. This is your TR. So your profit is equals to TR which is 100 plus Q minus TC which is 4/√Q minus 10। कुछ भी नहीं करना, del pi by del Q करो, which is 1 minus, और 1 is equals to 4। अच्छा, आपको ना सारे स्टेप्स लिखवा देता हूँ मैं, सो दैट आप एकदम से कहोगे सर इक्वल टू कहाँ से आ गया। 1 minus 4/2/√Q is equals to 0। कुछ नहीं करा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करा है, and that is equals to √Q is equals to 2 and hence Q is equals to 4। बट हमें क्या निकालना है, वी नीड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। तो Q आपको गिवन है विच इज 4, तो यहाँ पे वैल्यू निकालो, P इज इक्वल्स टू 100/4 plus 1 which is equals to 26। So here P is equals to 26। Yep. So this is all about the GATE PYQ for year 2023। Yep. Please take care guys, have fun, bye।